سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی خدمات حاصل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن پر اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت ترین ایکشن ناگزیر ہے۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ اجلاس میں سرحدیں سیل کیے جانے سے اسمگلنگ میں نمایاں کمی پر بریفنگ دی گئی۔ عمران خان نے صورتحال روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہوائی جہاز اور کھیتوں میں مشینز کے ذریعے سپرے کے معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی خدمات حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن پر اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت ترین ایکشن ناگزیر ہے۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اجلاس میں سرحدیں سیل کیے جانے سے اسمگلنگ میں نمایاں کمی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے راولپنڈی میں علماء اور مشائخ سے اہم ملاقات کی اور کورونا وائرس سے پیدا صورتحال پر بات چیت کی۔ عیدگاہ شریف راولپنڈی میں علماء کرام کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز پیر نقیب الرحمان سمیت جید علماء کرام اور مشائخ نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کرونا وائرس ایک عالمی ناگہانی آفت ہے، اس کو غیر سنجیدہ لینا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے سب اس بات پر یک زبان ہے کہ ریاست اور طبی شخصیات کی بات پر منوعاً عمل کیا جائے اور جتنا ہو سکتا ہے اس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے۔ اس موقع پر صاحبزادہ حسان حبیب الرحمان نے تمام جید علماء کرام کا پیغام پہنچایا۔ اجلاس میں پیر حبیب اللہ شاہ سجادہ نشین گمگول شریف، پیر محمد امین الحسنات شاہ سجادہ نشین بھیرا شریف، پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان سجادہ نشین بھگاڑ شریف، پیر سعادت علی شاہ سجادہ نشین چورا شریف، پیر شمس الامین سجادہ نشین مانکی شریف، خواجہ غلام قطب الدین فریدی سجادہ نشین گھری شریف، پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی سجادہ نشین مہرہ شریف، پیر سید علی رضا بخاری اور صاحبزادہ عدنان قادری کوتل شریف نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے علماء کی مشاورت سے ماہ رمضان کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں صدر مملکت کی زیر صدارت علماء سے کل ہونے والی ملاقات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ عمران خان بھی آئندہ ہفتے علماء کرام سے ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب ایوان صدر میں علماء کرام کا مشاورتی اجلاس کل ہوگا، جبکہ جس کی تیاریاں جاری ہیں۔ نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان، تراویح، جمعے کی نماز کے اجتماعات پر لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ تمام صوبائی حکومتوں سے تجاویز مرتب کی گئی ہیں، علماء اور حکومتوں کے ساتھ مل کر مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو میں صدر مملکت نے مولانا فضل الرحمان سے رمضان میں مساجد میں اجتماعات اور تراویح سے متعلق مشاورت کی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ علماء کی 12 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان علماء کمیٹی میں شامل ہیں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے میاں اسلم گل خطاب کر رہے ہیں۔ بھی باہر نکلے اور انہوں نے بھی مذمت کی، نیب کی اور اس حکومت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ظلم کے ضابطے زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ ان ضابطوں کو ہم نے ہمیشہ اپنی جوتی کی ٹھوک پہ ہم نے ٹھوکا، اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ اس کو پھینکا ہے۔ آج بھی ہم میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے جمہوریت پسند لوگ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور ان کی آزادی جو ہے
ये एक जबरन उनको झुकाने के लिए, जंग और जियो को झुकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मगर हम जंग रहेगी, 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 जंग रहेगी। और हम नैब और न्याजी गठजोड़ की मजम्मत करते हैं। ये नैब और न्याजी गठजोड़ जो है ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये जबर का निज़ाम ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मीर शकीलुर रहमान जल्द रिहा होंगे और हमारे साथ होंगे। हम उनकी रिहाई तक हम इस जद्दोजहद में आपके साथ हैं, शाना बशाना चलेंगे। चाहे आप जुलूस निकालें, जो भी जद्दोजहद होगी हम आपके साथ। बहुत मेहरबानी। पीपल्स पार्टी के मियां असलम गिल ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबरन उनको गिरफ्तार करना जंग और जियो को झुकाने की कोशिश है। अभी आपको बताएं, विफाकी हुकूमत के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मुस्तहिक बेरोजगार दिहाड़ीदार अफराद में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। तमाम अफराद का इंदराज हंगामी बुनियादों पर 8171 SMS सर्विस के जरिए किया जा रहा है। प्रोग्राम में इंदराज की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, एहसास कैश प्रोग्राम तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर शफाफ अंदाज में और मेरिट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान के अंदर 75% जो हमारा लेबर काम करता है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जब वो रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिनके बच्चे सिर्फ इसकी इंतज़ार होती है कि बाप जाके कोई मजदूरी करे और वो घर पैसा लेके आए, ये सारे घर मुश्किल में है इस वक्त। और इसलिए हमने ये इमरजेंसी बेसिस पे ये इतना बड़ा एहसास का प्रोग्राम, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये कभी इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोग्राम जिसके अंदर किसी किस्म की ह्यूमन मुदाखलत नहीं है, यानी इंसान किसी किस्म की अपने सिफारिश नहीं डाल रहे। 28,61,000 खानदानों तक ये पैसा पहुंचाया जा चुका है। 28,61,000 खानदानों तक 35 अरब रुपए से जायद पहुंचाए जा चुके हैं। बिजनेस स्टिमुलस से ज्यादा जो चीज फायदे में होगी वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो डेट सर्विसिंग करनी थी अंदरूनी कर्जाजात पे, डोमेस्टिक डेट लोन्स पे, उसमें खातिर का कमी आएगी और ये वो पैसे हैं जो कि एहसास प्रोग्राम पे खर्च किए जा सकेंगे। यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर शेयर करेंगे। इंडस मोटर कंपनी के सरबराह अली हबीब इंतकाल कर गए हैं। इंडस मोटर कंपनी के सरबराह थे अली हबीब, हाउस ऑफ हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिनसे इनका ताल्लुक था। अली सुलेमान हबीब इंतकाल कर गए हैं। चेयरमैन थे अली सुलेमान हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज से भी इनका ताल्लुक है, क्योंकि जैसे इंडस मोटर कंपनी मुबशर अपने देखने वालों को बताते चले कि एक मुश्तरका या जॉइंट वेंचर है बिटवीन हाउस ऑफ हबीब एंड टोयोटा मोटर्स। तो इंडस मोटर कंपनी के सरबराह हैं अली हबीब, जो कि इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं कि अली हबीब इंडस मोटर कंपनी के चेयरमैन और बानी डायरेक्टर थे। इसके साथ साथ वो थल लिमिटेड, शब्बीर टाइल्स एंड सेरेमिक्स, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन की हैसियत से भी काम कर रहे थे। अली हबीब ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के PMD प्रोग्राम में भी शिरकत की थी। इंडस मोटर कंपनी के सरबराह अली हबीब इंतकाल कर गए। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब, नहायत ही अफसोसनाक खबर, क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है, क्योंकि वो तो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में, तरक्की में उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। उन्होंने एज ए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर, और अभी रिसेंटली जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के एडवाइज़र के तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली और उनको जो है उनके लवाहिकीन को हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए कि इतना बड़ा लॉस जो है वो उसको बेयर कर सकें। अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए। आरिफ हबीब साहब, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप उनकी शख्सियत पर भी रोशनी डालें, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो कारोबार में उनकी खिदमात हैं उनसे भी ज़रा हमें आगाह कीजिएगा, हमारे देखने वालों को।
आई थिंक ये जो फैमिली है उस फैमिली का तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहसानात हैं हबीब फैमिली के। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है बिजनेसेस की डेवलपमेंट में, आपको पता है कि ये वो फैमिली है कि जिन्होंने पाकिस्तान में जो है वो हबीब बैंक लाए और हबीब बैंक के बाद फिर डिफरेंट एरियाज़ में जो है ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है उनके जो है इनकी फैमिली के जो कारोबार हैं, और इन्होंने ख़ास तौर पे जो है इंडस मोटर को जो है वो बहुत ही एबली लीड किया, और आई थिंक उनकी जो है वो कमी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान महसूस करेगा, और उसके लिए जो है वो हम सब जो है वो गमज़दा हैं। और उनको मतलब ज़ाहिर है वो बहुत ही निडर शख्स थे। वो अपने जो भी अपने हालात होते थे वो बरमला उनका इजहार करते थे और बड़े नेशनलिस्ट थे। जब भी वो डिस्कशन होती थी तो हमेशा ये कहते थे कि जो है वो कोई भी पर्सनल अपनी जो है इश्यूज और प्रॉब्लम पे बात नहीं करेगा, और नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं उस पर बात होनी चाहिए, और उसके लिए जो है तजावीज़ होनी चाहिए। और बड़े जो है वो अपनी जो व्यूज़ होते थे उसको वो पॉलिसी मेकर्स के सामने जो है वो बड़े दबंग अंदाज में जो है वो प्रेजेंट करते थे, और बड़े कन्विंसिंग अंदाज में जो है कि तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है उनको बहुत ज़्यादा मिस करेगा, और उनकी जो है वो कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाएगा। यकीनन। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी सेहत इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक। करना चाहते हैं, हमारी कौम का ये खासा है कि जब हमारे ऊपर कोई इस तरह की आफत आती है तो हम यकजा हो जाते हैं। तो हर तरह के कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, पैसे की सूरत में, मुख्तलिफ इक्विपमेंट की सूरत में, अद्वियात की सूरत में, वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, इसके साथ साथ बैरून मुल्क से भी हमें बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है पाकिस्तान से बाहर, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट्स और दीगर फिज़ियोथेरेपिस्ट्स, कई तरह के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं मुल्क से बाहर, उनकी तरफ से भी हमें बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से मदद करना चाहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के अगर हम सिर्फ डॉक्टर्स की बात करें तो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैले हुए हैं। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह कल एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उसमें हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक प्लेटफॉर्म जो है वो उसको लॉन्च करेंगे, जिसका नाम हमने रखा है यारान वतन। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसकी तफसीलात तो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन इसके ज़रिए फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि एक सिस्टम के तहत हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं बैरून मुल्क, वो अगर किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान में लोगों की इलाज मुआलजे के हवाले से, बचाव के हवाले से अगर कोई कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह कल इसके बारे में आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक अपडेट कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि अगर कोई मदद करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है कोरोना मरीज़ों की इमदाद के लिए या फिर मुस्तहक अफराद की इमदाद के लिए, तो किस तरह से मदद कर सकता है, ये कल वो लाहे अमल पेश करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के अहकामात की रोशनी में नैब लाहौर चुगताई लैब से कोरोना टेस्ट के मुआवजे में 50% कमी करवाने में कामयाब हो गया। डीजी नैब लाहौर कहते हैं कि दीगर निजी लैब से भी राब्ता किया जाएगा। कोशिश है कि कोरोना आफत का मुकाबला बाहमी रजामंदी और खिदमत खल्क के जज्बे के तहत किया जाए। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की हिदायत की रोशनी में नैब के आगही और तदारुक विंग ने चुगताई लैब्स के डायरेक्टर ऑपरेशंस और दीगर हुक्काम से मुलाकात की। नैब लाहौर ने उन्हें मयार पर समझौता किए बगैर कोरोना टेस्ट के मुआवजे में 50% कमी पर आमादा किया। चुगताई लैब्स की इंतजामिया ने फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए ज़ईफ शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट कीमतों में 50% कमी कर दी।
DG नैब लाहौर का कहना है कि चेयरमैन नैब की हिदायत की रोशनी में नैब लाहौर में भी कोरोना वायरस का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने से नताइज मिल रहे हैं। कोरोना के 15 मार्च को 472 टेस्ट किए गए थे और गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 6264 टेस्ट किए गए हैं। एक माह में कोरोना टेस्टिंग में 13 गुना इजाफा हुआ है। ये रुझान जारी रहना चाहिए। असद उमर ने बताया है कि कोरोना टेस्टिंग की तादाद बढ़ाई है और टेस्टिंग बढ़ाने से नताइज हासिल हो रहे हैं। असद उमर ने बताया है कि कोरोना के 15 मार्च को 472 टेस्ट किए गए थे और गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 6264 टेस्ट किए गए हैं। एक माह में कोरोना टेस्टिंग में 13 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये रुझान जारी रहना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन और मुहासरे के दौरान भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से ज़िला कशवाड़ में मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए हैं। इससे कबल ज़िला शोपियां में भी 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए थे। इस तरह 24 घंटों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 4 हो गई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने शेखुपुरा और नारोवाल में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की तकसीम के मराकज़ का दौरा करके रुकूम की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स भर्ती करने की मंजूरी भी दी। इनमें से 5,000 कांस्टेबल्स रवा माली साल जबकि मजीद 5,000 अगले माली बरस भर्ती किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे अदनान मलिक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा और नारोवाल का दौरा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की तकसीम का जायज़ा लिया और एक इजलास की सदारत की। इजलास में कोरोना इक़दामात के अलावा इंसदाद डेंगू व गंदम खरीदारी मुहिम के इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने बताया कि 10,000 कांस्टेबल मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती किए जाएंगे। ये तमाम भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। पुलिस नफरी की कमी दूर करने के लिए मजीद इक़दामात भी करेंगे। कोरोना वबा के दौरान मौसर हिफाजती इक़दामात के हवाले से पुलिस ने मिसाली किरदार अदा किया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाखों अफराद को माली इमदाद की फ्राहमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क्रेडिट है। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम को एक तहरीक की शक्ल में आगे बढ़ा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को नकद रकूम भी मुंतकिल की जाएंगी। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, नारोवाल। पाकिस्तान में नोवल कोरोना वायरस के मजीद केस सामने आने के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 7,025 हो गई है। कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद पाकिस्तान में अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 135 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 3,276 हो गई है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,008 और खैबर पख्तूनख्वा में 993 हो गई है। बलोचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 303 और गिलगित बल्तिस्तान में 245 है। इस्लामाबाद में अब तक 154 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज सामने आए हैं।